Hello students, welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your English teacher, and today we are going to start with the fourth chapter of the literature section. So this is the fourth chapter and the name of the chapter is The Journey Begins. So now this chapter is totally about a person who is very much punctual. सो यहाँ जो जिस इंसान के बारे में हम बात करेंगे ही इज़ अ वेरी पंक्चुअल मैन. दैट मीन्स कि वो टाइम को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड ही एवरी टाइम डज अ वर्क ऑन टाइम. दैट मीन्स कि उनका एक मिनट यहाँ से वहाँ नहीं होता. ही ऑलवेज डज एवरीथिंग विद अ पंक्चुअलिटी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट person. So come, let's start with the reading of this chapter and I'll explain the chapter with the reading. Okay. So this chapter is adapted from Round the World in 80 Days by Jules Verne. So Jules Verne is a writer of a novel who has written this chapter as a part, and this is the part taken from the novel जिसका नाम है Around the World in 80 Days. So how long would it take you to go round the world? If you get into a satellite carrier, it may take you round the earth in just over an hour and a half. So यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कितना टाइम लगेगा अगर कोई आपको बोले कि आपको पूरे वर्ल्ड के एक चक्कर मारना है. अगर कोई सैटेलाइट में आप जा रहे हैं, किसी सैटेलाइट कैरियर में जा रहे हैं, तो शायद सिर्फ 1 आवर लगेगा या हाफ एन आवर लगेगा. इनफ. इसमें आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं. बट हम तो सैटेलाइट में जा नहीं सकते. बट द अर्थ इज़ नॉट द सेम एज द वर्ल्ड. द वर्ल्ड मीन्स कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस. In short, people. So if you travel by air, you can go around the world with some stopovers and changes of flights in about 2 days. So अगर आप पूरे वर्ल्ड को घूम रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको कंट्रीज़ में जाना है, आप सिटीज़ घूमेंगे, टाउन्स में जाएंगे, छोटे छोटे विलेजेस में जाएंगे. सो दैट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम. सो अगर आप एयर से भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप फ्लाइट से भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे स्टॉप्स लेने पड़ेंगे एंड देन यू कैन complete your world tour, but that will also take a lot amount of time. But suppose there were no airplanes and no motor cars, how long would it take you to go around the world then? So अगर कोई एयरप्लेन नहीं होते हैं, कोई मोटर कार्स नहीं होते, तो you will take a large amount of time, maybe years, to complete the whole journey of the world. Now in this text, Phileas Fogg accepts a challenge by his friends to travel round the world. So this chapter is about Phileas Fogg who takes a challenge कि he will travel the whole world in 80 days. यानी कि वो 80 days में पूरा वर्ल्ड घूम लेंगे, ऐसा उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. The text is from the novel Round the World in 80 Days written in 1873. सो ये जो नावल है वो 1873 में लिखी गई थी, जिसमें फिलीस फॉग जो हैं वो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को 80 डेज में घूम लेंगे. नाउ फिलीस फॉग shut द डोर ऑफ हिज हाउस एट एग्जैक्टली 11:30 in the morning. यानी कि 11:30 पे, हाफ पास्ट है यानी कि 11:30 पे उन्होंने अपने मॉर्निंग के टाइम पर अपने हाउस को लॉक कर लिया. फॉग बिलीव्ड इन टाइम. वो हमेशा टाइम पे बिलीव करते थे. सो व्हेन ही अराइव्ड एट अ प्लेस, पीपल लुक्ड एट देयर वॉचेस टू चेक द टाइम. सो पंक्चुअल वॉज ही. यानी कि when he was about to reach a place, जब वो पहुंच जाते थे किसी भी जगह पर, तो लोग अपनी वॉच को चेक करते थे कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो पंक्चुअल, कि कैसे आप हमेशा इतने टाइम पे आ सकते हैं. सो पीपल यूज टू सी हिम एंड डिसाइड कि येस, अगर फिलीस आ गए हैं दैट मीन्स कि ये टाइम हो चुका होगा. सो पंक्चुअल ही वॉज. नाउ फॉग बिलीव्ड इन टाइम. When he arrived at a place, people looked at their watches to check the time, so punctual was he. The house being shut at the usual time, Fogg went straight to the Reform Club for breakfast. तो अपने हाउस को यानी कि अपने घर को वो बंद करके ब्रेकफास्ट के लिए रिफॉर्म क्लब में गए थे. On arrival, he went at one of the dining room and took his place at his usual table.
which has already been laid for him. Breakfast was washed down with several cups of tea before he rose at 13 minutes to 1. सो जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, वो यूजुअली जिस प्लेस पर जाते हैं, जिस टेबल पर बैठते हैं, उसी टेबल पर जाकर बैठ गए. उनके लिए पूरा टेबल भी सही से बना हुआ था. दैट मीन्स कि जिन्होंने टेबल लगाया था उनको भी पता है कि वो पंक्चुअल हैं, टाइम पर आ जाएंगे. एंड दैट इज़ वाई द टेबल वॉज ऑल्सो सेट फॉर हिम. नाउ ब्रेकफास्ट वॉज वॉश डाउन विथ सेवरल कप्स ऑफ टीज, यानी कि उन्होंने कप ऑफ टी भी लिया और अपना ब्रेकफास्ट ले लिया. एंड बिफोर ही रोज एट 13 मिनट्स टू 1, यानी कि जब 1 o'clock में 13 मिनट्स थे, वो अपने टाइम पर उन्होंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया. देन ही वॉक डाउन द रीडिंग रूम वेयर ही वॉज हैंडेड अ कॉपी ऑफ द टाइम्स. सो द टाइम्स इज़ अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर वो हमेशा पढ़ते थे. एंड वो रीडिंग रूम में गए और उनके हाथ में किसी ने न्यूज़पेपर दे दिया. Phileas Fogg read the newspaper until 3:45. His next task, reading the Standard, occupied him till the dinner hour. So वो जो थे, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर था, वो भी उन्होंने अपने टाइम पर ख़त्म कर लिया. एंड उसके बाद उन्होंने द स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो दूसरा न्यूज़पेपर है, दैट ऑल्सो ही रेड. एंड उसको कंप्लीट करते करते उनका डिनर का टाइम हो गया. पास्ट डिनर, यानी कि डिनर के बाद, मिस्टर फॉग रीअपियर्ड इन द रीडिंग रूम. वो फिर से रीडिंग रूम में आ गए डिनर के बाद. एंड सेट डाउन एट 20 minutes to 6, यानी कि अब 6 o'clock होने में 20 minutes हैं जब वो डिनर अपना कंप्लीट कर कर बैठ चुके हैं. हाफ एन आवर लेटर सेवरल मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म केम इन एंड ड्रू अप टू द फायर प्लेस, यानी कि उसके हाफ एन आवर लेटर जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल था, जितने भी उनके फ्रेंड्स थे, वो सब आ गए फायर प्लेस पर, यानी कि जहाँ पर आग जल रही थी. बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. सो दे जस्ट इग्नाइटेड द फायर, द वेयर अ फायर वॉज बर्निंग स्टीडली एंड फॉग हैड ऑलरेडी टेकन हिज प्लेस. सो फायर जो थी वो भी जल रही थी एंड फॉग ने अपनी प्लेस भी ले ली थी. द मेंबर्स वर मिस्टर फॉग्स यूजुअल कंपेनियंस. अब ये जो मेंबर्स थे रिफॉर्म क्लब के, ये कौन थे? तो ये वो उनके कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे मिस्टर फॉग के. द मेंबर्स वर मिस्टर फॉग्स यूजुअल कंपेनियंस. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट मेंबर का नाम यहाँ लिखा है, दैट इज़ एंड्रयू स्टुअर्ट, एन इंजीनियर, जॉन सिल्वन एंड सैम्यूल फ्लेंटन, बोथ बैंकर्स, थॉमस फ्लैनगन, अ ब्रूअर, एंड गॉथियर राल्फ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड. सो यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए हैं, इनमें से कुछ इंजीनियर थे, कुछ बैंकर्स थे, कुछ ब्रूअर था, और एक मिस्टर राल्फ थे जो वहाँ के बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टर थे. सो दीज वर ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर फॉग. व्हेन राल्फ सेड, फ्लैंगन, व्हाट अबाउट दैट रॉबरी? सो मिस्टर राल्फ जो है वो फ्लैनगन से पूछ रहे हैं कि रॉबरी के बारे में आपने सुना, क्या हुआ उसके बारे में? ओ, रिमार्क स्टुअर्ट, द बैंक विल लूज द मनी. ऑन द कॉन्ट्ररी, broke in Ralph, I hope we will get the robber. Skillful detectives have been sent to all the principal ports of America and the continent. A robbery had occurred 3 days before at the Bank of England. So एक रॉबरी हुई है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही हुई है. एंड दैट रॉबरी टुक प्लेस व्हेन राल्फ इज़ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक. सो जब राल्फ जो हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या हम रॉबर को पकड़ने में सक्सेस रहे हैं. सो फ्लैंगन सेड कि नो, द रॉबर्स हैव बीन वेंट अवे. सो राल्फ कहते हैं कि हमने बहुत सारे डिटेक्टिव्स लगाए हैं, दैट विल बी हेल्पफुल इन कैचिंग द रॉबर्स, जो उन चोरों को जिन्होंने बैंक को रॉब किया है उनको वो पकड़ सकें. A package of banknotes to the values of £55,000 had been taken from the principal cashier's table. As soon as the robbery was discovered, Detective hastened off to Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York, and other ports.
जैसे ही रॉबरी हुई, उस रॉबरी में 55,000 पाउंड्स की रॉबरी हुई थी, जहाँ से जो मेन कैशियर होता है बैंक में, उसके पास से ये सारा अमाउंट जो था वो चोरी हुआ था। नाउ जैसे ही रॉबरी हुई, बहुत सारे डिटेक्टिव्स थे, उनको बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस जैसे कि लिवरपूल, गैसगो, हैवर, सॉज, ब्रिंडसन, न्यूयॉर्क एंड ऑल दीज प्लेसेस, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स लगा दिए गए सो दैट कि डिटेक्टिव्स उन रॉबर्स को फाइंड आउट कर पाएँ। Detectives were also asked to closely watch those who arrived at or left London by rail. So इन डिटेक्टिव से ये भी बोला गया कि आप उन सारे लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन करो जो लंदन में आए हैं या लंदन से बाहर गए हैं। The Daily Telegraph said that a well-dressed gentleman had been observed going to and fro in the room where the crime was committed on the day of the robbery. A description of him was sent to the detectives. एक डेली टेलीग्राफ जो था उससे पता चला कि एक बहुत अच्छे जेंटलमैन जो है, बहुत वेल ड्रेस्ड मैन जो हैं, उनको ऑब्जर्व किया कि वो बार बार रूम में आ रहे थे एंड रूम से बाहर जा रहे थे जिस दिन ये रॉबरी हुई, उसी दिन। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम वॉज सेंट टू द डिटेक्टिव्स, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, वो जो जेंटलमैन थे उसके ऊपर सबको डाउट था कि शायद इन्होंने ही ये रॉबरी की है। वो कैसे दिखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कैमरास के थ्रू दिखाकर डिटेक्टिव्स की तरफ भिजवा दिया कि आप उन्हें पकड़ने में सक्सेसफुल रह पाओ। Everywhere people were wondering if the thief would be caught or not. The Reform Club was specially agitated, several of its members being bank officials. जो रिफॉर्म क्लब था वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे बिकॉज क्लब के बहुत सारे मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो बैंकर्स थे। पीपल जो लोग थे वो यही सोच रहे थे कि क्या हमें वापस मिलेगा मनी या नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एवरीवन वॉज वंडरिंग कि वेदर दे विल गेट द मनी बैक और नॉट। जो रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स थे वो ज़्यादातर वरीड थे, एजिटेटेड यानी कि डीपली वरीड थे कि वेदर दे विल बी एबल टू गेट द मनी और नॉट। आई मेंटेन, सेड स्टुअर्ट, दैट द चांसेस आर इन द फेवर ऑफ द थीफ। यहाँ पर स्टुअर्ट बोलते हैं कि शायद चांसेस यही हैं कि थीफ जो है वो सक्सेसफुल रहेगा अपनी रॉबरी में और वो सारा अमाउंट लेकर इस सिटी से बाहर चला जाएगा। वेल बट वेयर कैन ही गो टू, आस्क्ड राल्फ। राल्फ जो है वो पूछ रहे हैं स्टुअर्ट से कि ठीक है बट वो जाएगा कहाँ, दैट मीन्स द रॉबर जिसने चोरी की है वो कहाँ जाएगा। नो कंट्री इज सेफ फॉर हिम, उसके लिए कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। ओ आई नो दैट द वर्ल्ड इज बिग इनफ, इट वॉज वंस, सेड फॉग इन अ लो टोन। यहाँ पर जब स्टुअर्ट और राल्फ बात कर रहे हैं कि हम उस रॉबर को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, तो स्टुअर्ट कहते हैं कि वो कहाँ जाएगा या वो शायद सक्सेसफुल हो जाएगा, बट राल्फ जो है वो कहते हैं कि वो जाएगा तो आखिर कहाँ जाएगा। देयर इज़ नो कंट्री जहाँ पर वो सेफ़ हो, बिकॉज पुलिसमैन जो हैं वो पूरे कंट्री में हैं एंड दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे पकड़ ही लेगा। इनकी कन्वर्जेशन के बीच में मिस्टर फॉग ने बोला इट वॉज वंस, यानी कि वर्ल्ड जो है वो एक बड़ी प्लेस है पर वो पहले हुआ करती थी, अभी वो इतनी बड़ी प्लेस नहीं है। वॉट डू यू मीन बाय वंस, हैज़ द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर, आस्क्ड स्टुअर्ट। जब मिस्टर फॉग ने कहा कि वर्ल्ड जो था वो पहले एक बड़ा प्लेस हुआ करता था बट अब वो बहुत छोटी चीज़ है, तो स्टुअर्ट उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या वर्ल्ड छोटा हो गया है, क्या उसकी साइज छोटी हो गई है। सर्टेनली, राल्फ असर्टेड, आई अग्री विथ मिस्टर फॉग, द वर्ल्ड हैज़ इंडीड ग्रोन स्मॉलर since one can go round in 10 times more quickly than 100 years ago. राल्फ कहते हैं कि हाँ शायद मिस्टर फॉग जो है वो सच कह रहे हैं, मैं उनसे अग्री करता हूँ।
क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड जो है वो अब इतना छोटा बन गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो 10 टाइम्स फास्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ उनको पहले कहीं भी ट्रैवल करने के लिए 1 मंथ लगता था, तो आज उनको ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन लगते हैं। So that means the world has become smaller. That means we can go into several places with a less time amount, right? But Stuart was not convinced, said with a short laugh, "You, Ralph, have a strange way of proving that the world has grown smaller. So because of you can go round it in 3 months. In 80 days, fog broke in." सो जो स्टुअर्ट है वो हंसी मजाक करते करते राल्फ को कहते हैं कि आप बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। आप सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड छोटा हो गया है बिकॉज हम उसे 3 मंथ्स में घूम सकते हैं। तो फॉग बीच में उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि नहीं, हम उसे 80 डेज में ही घूम सकते हैं। दैट इज ट्रू जेंटलमैन, एडेड जॉन सिविलियन, ओनली 80 डेज। सो यहाँ पर जो कलीग्स हैं उनके बीच में ये बात चल रही है कि सिर्फ 80 डेज में ही पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल किया जा सकता है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड कैसे 80 डेज में डिस्कवर किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।